good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 22. Okay, so what is the problem? First of all, we write down all the given data here. A furnace wall consists of 200 mm layer of refractory bricks. Means furnace wall is given. What is the length of these furnace walls? The length of the furnace wall is given LA. I show this LA. It is 200 mm. Okay. The length is given. I draw the diagram here. In simple diagram I draw here. Okay, so 200 mm layer of a refractory bricks. So suppose this is these portions. I consider these ones A portions, refractory bricks. Then after that 6 mm layer of a steel plate will be there. Another layer is a 6 mm steel plate. Suppose this is a 6 mm steel plate. This is shown by the letter B. So this one I show here. LA convert into the meter. It is 0.2 meter. Okay, 6 mm layer of a steel plate. So this show by the letter LB. LB is equal to 6 mm. So LB is equal to in meter how much? It is 0.006 meters. And 100 mm layer of insulation bricks. Means after that what is there, you focus 200 mm of layer of refractory bricks, 6 mm layer of a steel plate, okay, and 100 mm layer of insulation bricks will be theirs. Then after that what is here, the maximum temperature of a wall is 1150 degrees Celsius. Means this side temperature is given T1s. Okay, so I write down here T1 is 1150 degree Celsius on the furnace side, and the minimum temperature is how much? 40 degrees Celsius. So this temperature is given this side. Okay, so this temperature I show it is 40 degree Celsius, the outermost side of the wall. An accurate energy balance over the furnace shows that the heat loss from the wall is how much? It is 400 watt meter squares. Means the value of the Q is given, heat loss from the wall Q is given 400 watt per meter squares. It is known that there is a thin layer of you focus here, thin layer of air between the layers of refractory bricks and steel plates. अब ये स्टील प्लेट के बीच में ए और बी के हमारे को लेयर दिए का कि एयर के बच्चों. अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अच्छे से थोड़ा सा. हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है. There is a thin layer of air, okay, air in between the layer of these refractory bricks and steel plates. मतलब यहाँ पे इसके बीच में एक थिन लेयर दी हमारे को एयर की. ये मैंने फोकस कर दी सपोज एयर की लेयर, दिस वंस. ओके, और इधर क्या है बच्चों, हमारी एक स्टील प्लेट है. ये समझने के लिए प्रॉब्लम आपको, ठीक है. यस और नो? यस. स्टील प्लेट्स को सपोज हम कर देते हैं शो सी से अभी, और एयर को शो करते हैं हम बी से बच्चों. तो इधर की जो आखिरी की लेयर है इंसुलेशन इसको डी को. तो यहाँ पे फिर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं एल सी करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इसको एल सी करता हूँ. मतलब आपको समझने के लिए प्रॉब्लम आसान जाएगा फिर. ठीक है, सो इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों एल सी, स्टील प्लेट के लिए, क्योंकि
ओके। और ये आपकी इंसुलेशन लेयर, सबको नाम देते थे हम, दिस इज सी एंड दिस इज फाइनली डी। अब आगे देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द 3 लेयर्स आर दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। अब तीनों लेयर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी दी है मेरे को, तो मैं पहले लिख लेता हूँ के हमारे को दिया है बच्चों, के इज 1.52 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में फिर थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएंगी किसके लिए, एयर के लिए, और एक हो जाएंगी इंसुलेशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो एयर और हमारे को स्टील प्लेट दी है उसकी भी इसकी हमारे को थर्मल कंडक्टिविटी मैं लिखता पहले एयर की, और के डी फॉर इंसुलेशंस। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेंगी बच्चों, एकदम कम रहेंगी। तो ये आ गई 0.138 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एयर भी क्या है हमारा, ये जो एयर है दिस इज द एयर लेयर, एयर भी क्या रहेगा बच्चों, इंसुलेशंस। ये एक लेयर का की है इंसुलेशंस की, ओके। और सी क्या है हमारी, ये स्टील प्लेट है, तो स्टील प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहेंगी। तो ये के बी के सी हमारे स्टील प्लेट, तो के सी हमारे को दिया है 45 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। ये बराबर आपको समझना है बच्चों, हाँ, क्योंकि 45 जो है ये काय की वैल्यू दी है, थर्मल कंडक्टिविटी स्टील की, क्योंकि उसकी क्या रहेंगी ज़्यादा, और ये एयर और इंसुलेशन की क्या रहेंगी हमेशा कम रहेंगी। तो क्या पूछा है देखिए इसके अंदर, पहला क्वेश्चन पूछा है, टू हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ इंसुलेशन ब्रिक इज द एयर लेयर इक्विवेलेंट्स। मतलब हमारे को एक एलसी की वैल्यू यहाँ पे पूछी है बच्चों। ये एलसी मतलब जो मैंने यहाँ पे लगा दिया इंसुलेशन एयर गैप का, ये एयर गैप का इंसुलेशन कितना है ये वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो पहला वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एयर गैप इंसुलेशंस एक्स, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ स्टील प्लेट। अब स्टील प्लेट कौन सी हमारी, ये वाली, तो ये बाहर का टेम्परेचर यहाँ का पूछा है हमारे को, ये स्टील प्लेट का टेम्परेचर कितना रहेगा गाइस, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो ये हमारे को निकालना है स्टील प्लेट का टेम्परेचर्स, ओके। इसको हम बना देते हैं TSO, ये T1, ओके। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर्स which is asked in the problem this one TSO स्टील प्लेट के लिए ये इनिशियल टेम्परेचर और ये बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TSO गाइस, ठीक है। तो आपको पूरा गिवन डाटा समझ में आ गया। तो देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं और एक बार डायग्राम बना लेता हूँ बड़ी की बड़ी। Okay guys, okay, so I draw the diagram here for your better understanding point of view once again. हाँ, पहले हमारे पास में है फायर ब्रिक्स, ठीक है। दूसरा बता दिया मैंने गैप, एयर गैप। तीसरा है हमारे पास में स्टील प्लेट, और चौथा है हमारे पास में इंसुलेशंस ये B, C और D। ये क्या है बच्चों हमारे पास में रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ओके। ये जो है हमारे पास में दिया है बच्चों एयर गैप, ठीक है, एयर। उसके बाद में ये दिया हमारे को बच्चों क्या, स्टील प्लेट, ठीक है। और ये आखिरी का दिया हमारे को यहाँ पे इंसुलेशंस। ये टेम्परेचर हमारे को दिया है T1, इसका वैल्यू दिया है बच्चों कितना, 1150 डिग्री सेल्सियस। और इधर का वैल्यू हमारे को दिया है, समझो ये T2 बाहर का मैंने कंसिडर किया,
T2 नहीं, ये हो गया समझो T2 ले लो, ठीक है, समझने के लिए आपको। इसको मैंने दिया 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमारे को ये वैल्यू दिया सब बच्चों, ये ले दिया है यहाँ से ये ले दिया है गाइज, ये ले, दिस इज द ये ले, दिस इज फॉर यल बी, दिस इज द यल सी, और ये हो गया क्लियर यल डी गाइज। अब ये सब वैल्यू दिया हमारे को, सब गिवन डाटा हमने निकाला। पहला पैरामीटर हम निकालेंगे एक्स, मतलब हमको क्या की वैल्यू निकालनी है, इंसुलेशन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे को यहाँ पे निकालना है। तो देखिए गाइज, वी नो इक्वेशन हमारे को पता है, हमने हर इक्वेशन को प्रूव किया है। क्या इक्वेशन था हमारे पास में, Q इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा टी अपॉन समेशन ऑफ यल बाय के, ये हमने फार्मूला प्रूव किया था पहले ही। तो यहाँ पे अभी हमारे को स्मॉल q की वैल्यू दी है, स्मॉल q क्या रहता है हमेशा, कैपिटल Q अपॉन A, बराबर है। तो ये फार्मूले में मैं एडजस्टमेंट करूंगा, Q अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डेल्टा टी अपॉन, ये सबका समेशन है, तो कितनी लेयर है हमारे पास में, 4 तो चारों को मैं एडिशन करूंगा, यल ए अपॉन के बी प्लस के ए, यल बी अपॉन के बी प्लस यल सी अपॉन के सी प्लस यल डी अपॉन के डी, ये चारों की लेयर मैंने यहाँ पे ऐड कर डाली। तो ये हो गया स्मॉल q इज इक्वल टू डेल्टा टी हमारे को दिया है बच्चों, डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, मतलब 1150 माइनस 40, T1 माइनस T2, दिस वन डेल्टा टी इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय यले कितना दिया है बच्चों हमारे को, यले की सबकी वैल्यू हमने निकाली है। यले है हमारे पास में 0.2 अपॉन के भी हमारे को पता है बच्चों 1.52 प्लस यल भी हमारे को निकालना है यहाँ पे, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ x अपॉन के बी हमारे को दिया कितना 0.138 प्लस यहाँ पे देखिए अभी एलसी दिया है हमारे को, इट इज़ 0.006 अपॉन 45 प्लस एलडी दिया है हमारे को आखिरी का 0.1 अपॉन 0.138, ये सब वैल्यू हमारे को यहाँ पे दी है गाइज। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो Q कितना दिया हमारे को, वी नो द वैल्यू ऑफ द Q इज 400 इज गिवन इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा 1110 डिफरेंस डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद में इसका रेशो आ जाएगा हमारे पास में 0.1316 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे को भी आंसर काय में लगेगा बच्चों, हमारे को आंसर लगेगा यहाँ पे mm में, अगर डिवाइड किया, अगर नहीं डिवाइड किया तो हमको मीटर में मिल जाएगा। अब हर चीज़ हमने काय में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मीटर में की है, ठीक है। तो x, देन यू पुट द ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे देखिए अभी इसकी वैल्यूज, इसको सॉल्व कीजिए आप 1 लाइक दैट, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। इसको मैं अभी फिलहाल का ऐसे लिखता हूँ, आपको अब आगे समझाता हूँ इसको। 0.138 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया हमारे पास में 0.00013 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास में 0.7246 गाइस, सर नो, यस। ये पूरा कैलकुलेशन हमारे को यहाँ पे मिल गया, जो जो फार्मूले हमारे पास में दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे समझिए इसको, प्रॉब्लम को।
ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए। अभी रेसिप्रोकल आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। 1/1 इसका आंसर आएगा 1/ डिवाइडेड बाय 0.138, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.24। ओके, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सेपरेटली। यू फोकस हियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x/0.138। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितने वाला है, आने वाला है 7.246x। ओके, ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर इसको मिटा के। हाँ, so guys, I write down here the value of this 7.246x। अब ये आप सिंपल आपके कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। यू सॉल्व इन योर कैलकुलेटर्स, आफ्टर सॉल्विंग इन योर कैलकुलेटर यू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे x आपको काय में मिलेगा दोस्तों, मीटर में, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास में क्या है अभी, मीटर में। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0.2665 मीटर। ये इतना हमारे पास में एयर का इंसुलेशन आ गया। ये जो लेयर है यहाँ की, दिस वैल्यू वी हैव टू गॉट। अब इसको अगर mm में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, mm में हो जाएगा ये हमारे पास में 2665 mm। Yes or no? Yes. If you convert in meter into mm, then we get the value of this x is 2665 mm. So very simple calculations. Now second parameter is asked in the problem, temperature outside. Okay. आउटसाइड का टेम्परेचर हमारे को पूछा है, मतलब ये बाहर का टेम्परेचर यहाँ का गाइज। यस और नो? यस। ये साइड का टेम्परेचर हमारे को पूछा अभी, दिस साइड। अब ये साइड का टेम्परेचर तो हम इजीली निकालेंगे। अभी देखिए, वी कैन सॉल्व दिस। हाँ, तो सेकंड पैरामीटर आई राइट डाउन हियर, टेम्परेचर आउटसाइड्स ऑफ स्टील प्लेट। ओके, तो फिर देखिए अभी बच्चों, Q इज इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा, Q इज इक्वल टू TSO माइनस T2 फाइनल टेम्परेचर अपॉन LD अपॉन KD। वेरी सिंपल फार्मूला, ये तो सब हम जानते हैं। फिर 400 वैल्यू पुट कीजिए, TSO हमारे को निकालना है, T2 हमको दिया है कितना 40, LD हमारे को पता है कितना है 0.1, KD की वैल्यू पता है हमारे को इंसुलेशन की कितनी है 0.138। तो सिंपल कैलकुलेशन कीजिए बच्चों, यू कैन इजीली सॉल्व दिस कैलकुलेशन एंड TSO का आंसर हमारे को मिल जाएगा 329.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर ऑफ TSO, आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ अ स्टील प्लेट्स। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। Then we focus now another second problem here. See here. पढ़िए प्रॉब्लम दोस्तों क्या दिया है, वेरी इजी। तो देखिए क्या दिया है, A furnace wall is composed of 220 mm of a fire brick. ओके, मतलब यहाँ पे सेम पिछले जैसा प्रॉब्लम में फर्नास वॉल दिया है, उसका हमारे को एक उसकी थिकनेस दी है येले। आई राइट डाउन जस्ट गिवन डाटा हियर, वॉट एवर द गिवन इज गिवन। येले, इसको शो किया हमने, येले दिया हमारे को 220 mm। इसका कन्वर्शन करेंगे हम मीटर में तो कितना होता है दोस्तों,
व्हाट इज 0.22 मीटर्स। सेकंड दिया हमारे को 150 mm ऑफ अ कॉमन ब्रिक। एक ये दूसरा दिया है कॉमन ब्रिक, इसको शो किया मैंने LB से। सो LB इज गिवन 150 mm, सो कन्वर्ट इनटू मीटर, तो ये हो गया 0.150 मीटर्स। फिर दिया हमारे को 55 mm ऑफ 85% ऑफ मैग्नीजा एंड 3 mm ऑफ स्टील प्लेट ऑन द आउटसाइड्स। तो ये सिचुएशन हमारे को दी है। LC दिया है, पहले LC बता देता हूँ मैं मैग्नीजा को। तो LC का वैल्यू दिया है हमारे को गाइस 50 mm। ये हो जाएगा मीटर में हमारे पास में 0.05 मीटर। और आखिरी का दिया है स्टील प्लेट LD हो जाएगा हमारे पास में 3 mm। तो ये हो गया मीटर में 0.003 मीटर गाइस। समझ में आ गया आपको? ओके। इफ द इनसाइड सरफेस टेम्परेचर इज दिस वन। अब देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हुआ, वेरी इजी डायग्राम आई ड्रॉ हियर। ठीक है, हाँ यहाँ पे बनाता हूँ मैं डायग्राम बच्चों, आपको समझने के लिए। हाँ, अब पहला जो दिया हमारे को, पहला क्या है हमारे पास में फायर ब्रिक। ओके, फर्स्ट पैरामीटर इज गिवन इज हियर फायर ब्रिक। ओके, दूसरा क्या दिया हमारे को बच्चों, कॉमन ब्रिक। ये दिया है सेकंड हमारे को यहाँ पे कॉमन ब्रिक। ठीक है, इसको मैं एकदम शॉर्टकटिंग लिख रहा हूँ, CB कॉमन ब्रिक। तीसरा क्या दिया हमारे को बच्चों यहाँ पे मैग्नीजा। ये थर्ड दिया है हमारे को मैग्नीजा। ओके, और चौथा दिया हमारे को एकदम छोटा स्टील प्लेट्स। ये दिया हमारे को यहाँ पे आखिरी में बच्चों स्टील प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनसाइड टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर दिया इनसाइड T1 से मैं बताऊंगा 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिख लेते हम, T1 इज गिवन 1500 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर दैट आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस। पूरा आउटसाइड इधर का टेम्परेचर हमारे को दिया है गाइस। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह से देता हूँ, ये T1, तो सपोज ये T2, ये T3, ये T4, तो ये बन गया यहाँ का बच्चों टेम्परेचर T5। तो T5 हमारे को दिया है कितना दोस्तों, 90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटसाइड पूरा टेम्परेचर T5 90 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखिए, एस्टिमेट द टेम्परेचर बिटवीन द लेयर्स। पूरा टेम्परेचर हमारे निकालना है हर जगह का, मतलब T2, ये T3 और T4, ये तीनों टेम्परेचर हमारे को यहाँ पे निकालना है गाइस। T2, T3 एंड T4, ये सब टेम्परेचर की वैल्यू हमारे को निकालना है। ओके, कैलकुलेट द हीट लॉस इन किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर। हमारे को हीट लॉस निकालना है, क्यू भी हमारे को निकालना है बच्चों यहाँ पे। ओके, उसके बाद में देखिए अज्यूम के फॉर अ फायर ब्रिक, मतलब ये पहले कंडीशन के लिए हमारे को दिया है, इसको कहा मैंने A, ये बन गया मेरा B, ये C और ये D। तो थर्मल कंडक्टिविटी दिया हमारे को सबकी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गिवन डाटा। Ka इज इक्वल टू फायर ब्रिक के लिए 4 किलो जूल मीटर आवर डिग्री सेल्सियस। ओके, कॉमन ब्रिक के लिए दिया है, Kb के लिए दिया है हमारे को 2.8 किलो जूल मीटर आवर डिग्री सेल्सियस। के फॉर 80% मैग्नीज, हाँ 80% 5 वाला मैग्नीजा लगा दिया। ये भी एक मटेरियल है हमारे पास में। ओके, इसको मैंने बताया Kc से, तो ये दिया हमारे को
0.24 किलो जूल मीटर आवर डिग्री सेल्सियस, और स्टील प्लेट का के दिया हमारे को KD, ये हो गया 240 किलो जूल मीटर आवर डिग्री सेल्सियस। ये पूरा डाटा हमने निकाल डाला, और क्या क्या निकाला ये भी हमको पता है। ठीक है गाइज, तो चलिए निकालते हैं हम अभी पहला पैरामीटर हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द हीट लॉस। ओके, जो कितनी हीट लॉस उसके अंदर से हो रहा, जो पहला पैरामीटर हमारे को पूछा है हीट लॉस इन, लेकिन यहाँ पे काय में दिया अभी किलो जूल में निकालना है हमारे को, किलो जूल आवर मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलो जूल पर आवर का कन्वर्शन हम काय में कर सकते हैं, किलो वाट में कर सकते हैं। ओके, किलो जूल डिवाइड बाय आवर्स, आवर का सेकंड कर डालो, लेकिन हमको काय में पूछा है किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम इससे निकालेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, अभी तो फिर क्या फार्मूला है हमारे पास में, स्टैंडर्ड Q इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा T अपॉन समेशन ऑफ L अपॉन K, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला है। उसके बाद में स्मॉल q क्या रहता है, Q अपॉन A, तो फिर ये फार्मूला क्या हो गया, फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन समेशन सबका LA, सबका समेशन, तो फिर पहली लेयर आएंगे हमारे पास में LA अपॉन KA, दूसरी लेयर आएंगे हमारे पास में LB अपॉन KB गाइस, तीसरी आएंगी LC अपॉन KC, और चौथी आएंगे हमारे पास में LD अपॉन KD। कुछ हार्ड है क्या, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिया है। तो फिर सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। Q हमारे को निकालना है गाइस, Q डेल्टा T। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा प्रॉब्लम में, डेल्टा T मतलब T1 माइनस T5, T1 माइनस T5, ये हो गया डेल्टा T अपॉन सबकी वैल्यू पुट कीजिए, LA 0.22 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी इसकी 4, प्लस LB गाइस 0.15 अपॉन इसका KB दिया हमारे को 2.8, प्लस LC 0.05 डिवाइडेड बाय KC दिया हमारे को 0.24, प्लस LD कितना दिया है 0.003 डिवाइडेड बाय 240। ओके गाइस, और T1 माइनस T5, तो ये T1 माइनस T5 यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, डेल्टा T क्या है T1 माइनस T5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर T1 दिया हमारे को 1500 माइनस ये दिया है 90, तो ये कितना आएगा फिर डेल्टा T, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए, 1500 में से 90 गए तो ये आ गया 1490, 149, ओके, नॉट लाइक दैट, erase this। तो ये आ जाएंगे 1510। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1500 में से 90 चले गए तो कितने आ गए हमारे पास में, फिर 1410। ओके, 90 मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे 1500। तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, ये इसको भी मैं मिटा देता हूँ आपको समझने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया अभी, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये फार्मूले में मॉडिफिकेशन करके, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, हाँ, तो 1500 माइनस 90, ये सिंपल आप करो कैलकुलेटर में तो आपको Q मिल जाएगा यहाँ पे गाइस, आफ्टर यू डू द ऑल द कैलकुलेशंस, वेरी इजी। 449.35 किलो जूल
आवर मीटर स्क्वायर। यह बन गया हमारा पहला आंसर। यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, अब पूछा है हमारे को सेकंड पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए अभी सेकंड इस पे अब सेकंड में हमारे को पूछा है टेम्परेचर बिटवीन द लेयर्स। सेकंड पैरामीटर इज आस्क्ड टेम्परेचर लेयर्स। ओके, तो एकदम इजी है। क्या फार्मूला है हमारे पास में, सबको आप लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू, पहला अगर लेंगे हम लेयर, इतनी लेयर है हमारे पास में 1 2 और ये, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास में डायग्राम दी है। ये तो सिंपल है, आपको भी पता नहीं भी काम नहीं है। A B C और ये D, एक ज़्यादा होगी उसमें सपोज। ठीक है, दोनों में बराबर है। यस, पहली लेयर है A, फिर है B, फिर है C, फिर थे हमारे पास में यहाँ पे ये छोटी वाली D। तो ये अभी हमको T1 और ये दिया था, फिर हमको निकालना है यहाँ का ये T2, ये T3 और ये T4, ये निकालना है। Q हमारे को पता है, तो देखिए सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू T4 माइनस T5, ये तो हम लोगों को सब पता है। ओके, T4 माइनस T5, तो इसके लिए कौन सा आ गया होंगे अभी T4 माइनस ये हो गया यहाँ का T5, तो यहाँ पे आ गया फिर LD अपॉन KD। तो वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों। T4 का तो हमको निकालना है, Q का वैल्यू दिया है। Q का वैल्यू कितना है हमारे पास में, Q इज गिवन हाउ मच, Q हमने निकाला अभी, Q हमने निकाला है 4449.35, ये हमने निकाला है अभी। T4 हमारे को निकालना है, T5 दिया हमारे को 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय LD की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.003 अपॉन KD दिया हमारे को 240। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए और T4 यहाँ पे मिल जाएगा आपको हाउ मच, 90.056 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया इसके लिए। सिमिलर फॉर व्हाट इज T3, तो अब T3 के निकालेंगे तो Q सेम T3 कौन सा भी एक पैरामीटर लीजिए। अब T3 लिया मैंने, T3, अब T3 किसके बीच में आ गया अभी, T4, मतलब ये C लेयर में आ गया। तो फिर यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास में T3 माइनस T4, तो मैंने अभी निकाला ही, आपके सामने दिख रहा है ये T4 डिवाइडेड बाय ये आ गया अभी LC अपॉन KC। तो अब देखिए Q का वैल्यू कितना दिया गाइस, Q दिया है हमारे को 4, ये तो हमने निकाला 449.35। T3 हमारे को निकालना है माइनस T4 अभी निकाला हमने 90.056 डिवाइडेड बाय LC कितना दिया गाइस, LC दिया हमारे को 0.05 डिवाइडेड बाय KC दिया हमारे को 0.24। तो इसको आप सिंपल सॉल्व कीजिए, आपको T3 का वैल्यू मिल जाएगा। T3 हाउ मच, T3 मिल गया आपको 1016.86 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे निकालेंगे हम, देखो अभी एक ही निकालना है ना अभी, तो यहाँ पे निकाल लेते अपन। वी हैव टू रिक्वायर अभी एक ही पैरामीटर होना, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं अभी। देखिए गाइस, इसमें यहाँ पे निकालता हूँ। अब हमने T4 निकाला, T3 निकाला, अब हमारे को ना T2, तो सेम फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू
क्या आएगा अभी T2 माइनस T3, यहाँ पे आएगा फिर LB अपॉन KB। तो Q का वैल्यू हमारे को पता है गाइस, क्या है Q हमारे पास में 4449.35 इज इक्वल टू T2, T3 तो मैंने अभी निकाला, कितना है T3 1016.86 डिवाइडेड बाय LB कितना दिया है गाइस, LB दिया हमारे को 0.15 डिवाइडेड बाय KB का वैल्यू कितना है बच्चों 2.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल मैथ। T2 तुम्हारे को मिल जाएगा 1255.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सब वैल्यू मैंने निकाल के दी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अभी T2 की वैल्यू। T2 इज 1255.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको T2 मिल गया, T3 मिल गया, T4 मिल गया गाइस। अगर हम सबके एडिशन निकालेंगे तो हमको आराम से T1 कितना है हमारे पास में 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अभी हमने सब वैल्यू निकाल डाली, यस और नो, यस, ये हमारा T1, T2, T3, T4 और T5। ओके गाइस, एनी डाउट? सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, देयर इज नो एनी डिफिकल्टी। So I stop here. In next lecture we have to see some another new problems. Okay, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends and your another new college friends. So stay at home, stay safe. Thank you very much.